पांडुरंगा तिला सुखी ठेव. आता तुम्हा सर्वांना माझं शेवटचं एकच सांगणं आहे की सुखी संसारी असावे, चित्त परब्रह्मी ठेवावे. अखंड नाम हा परब्रह्म गाठण्याचा माझ्या अनुभवाचा एकच अगदी सोपा मार्ग आहे. त्यानं ईश्वरावरील श्रद्धा अचल होते, चित्त शुद्ध होते. स्वैर संचारी मनाला ईश्वरी प्रेमाखेरीज कशानंही वेसण घालता येत नाही. मनाच्या या प्रेममय अवस्थेला एकविध भाव म्हणतात. अखंड नामोच्चारानं हा एकविध भाव आपल्या अंतःकरणात उत्पन्न करून परमेश्वर प्राप्ती करून घेता येते. आणि मग मुखी नाम हाती मोक्ष ऐशी साक्ष बहुतांची. अवघे लाभ होती या चिंतने, नाम संकीर्तने गोविंदाच्या. पैलाले हरी शंख चक्र शोभे करी, शंख चक्र शोभे करी, शंख चक्र शोभे करी. करुण येतो फडकारे नाभी नाभी म्हणे त्वरे, नाभी म्हणे त्वरे, नाभी नाभी म्हणे त्वरे. मुकुट कुंडलांच्या दीप्ती तेजे लोपला गवस्ती, लोपला गवस्ती तेजे लोपला गवस्ती. मेघ श्याम वर्ण हरी मोठी डोळस साजिरी, डोळस साजिरी मोठी डोळस साजिरी. चतुर्भुज वैजयंती गळा माळ हे रुळती, गळा माळ हे रुळती, गळा माळ हे रुळती. पीतांबर झळके कैसा उजळल्या दाही दिशा, उजळल्या दाही दिशा, उजळल्या दाही दिशा. तुका झाला से संतुष्ट घरा आले वैकुंठ पीठ, आले वैकुंठ पीठ घरा आले वैकुंठ पीठ. पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग. पांडुरंग 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 पांडुरंग. आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, राम राम घ्यावा, आमचा राम राम घ्यावा. आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, राम राम घ्यावा, आमचा राम राम घ्यावा. तुमची आमची हेची भेटी येथून या जन्मती, येथून या जन्मतुटी, येथून या जन्मतुटी. आता असो द्यावी दया तुमच्या लागत से पाया, लागत से पाया तुमच्या लागत से पाया. येतान यथानी कोणी विठ्ठल विठ्ठल बोलावानी, विठ्ठल बोलावानी, विठ्ठल विठ्ठल बोलावानी. रामकृष्ण मुखी बोला तुका जातो वैकुंठाला, जातो वैकुंठाला, तुका जातो वैकुंठाला. पांडुरंग हरी, 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 पांडुरंग. Hare Krishna, everyone. Welcome to the Wednesday Sangha today at ISKCON of Bergen. We have a very special speaker, His Grace Krishna Bhakta Prabhu.
He's already here. So we'll start the conversation pretty soon now. I'll take the chance to welcome Prabhuji. Welcome to this Kana Bargan in the series of speaking about the Vaishnava saints of Maharashtra. And it was such a nice last lecture, was very nice. And we'll continue in that without any delay. I'll just give a short introduction and we'll continue with the topic. So, His Grace Krishna Bhakti Prabhu, he's born in a Christian family as a Joseph Joyce, and he joined International Society of Krishna Consciousness in his early age in 1998 and 99 in ISKCON Belgaum, Karnataka. And in 2006, he took initiation from His Holiness Loknath Swami Maharaj. Soon after initiation, he took up the service of assisting His Holiness Loknath Swami, and in 2009 was appointed as the corresponding secretary and executive committee member for the IMP ISKCON Maharashtra Preaching Ministry. Along with this service, he also took major managerial responsibilities in various temples and played an active role in the temple opening of major projects of His Holiness Loknath Swami Maharaj, like ISKCON Aravade in Maharashtra, ISKCON Noida in UP. He also served as a vice temple president of the ISKCON Beed and as a active TMC member of the ISKCON Pandharpur. Currently, he's serving the movement as a co-president of the ISKCON Noida, India, and regional secretary of the ISKCON Maharashtra. Apart from management, Krishna Bhakta Das also has a special taste of delivering Marathi and Hindi lectures, especially for the youths, leading the melodious kirtans and performing and directing wonderful dramas. And I happened to have a chance meet Prabhuji in the summer in the initiation ceremony, the big festival in Vrindavan. So, Prabhuji, we are very thankful of you giving us a time and this beautiful, wonderful stories of Vaishnava saints. And without any delay, let's go for it. Prabhuji, all yours. Devotees, I request you to unmute and welcome Prabhuji with Hare Krishna Mahamantra loudly. Hare Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare. Thank you. Hare Krishna. All yours, Prabhu. Hare Krishna. I'm audible, Prabhu? Yes. Yes, thank you very much for giving me this opportunity once again. And जैसे मैं देख रहा था अभी कि तुकाराम महाराज वैकुंठ जा रहे थे, आपने भी सभी देखा होगा. The host has purposefully kept that because we had to finish and we had to send Tukaram Maharaj today back to home, back to Godhead. तो पिछले बुधवार को हमने तुकाराम महाराज का ये जीवनी और उनकी शिक्षा द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ तुकाराम स्टार्ट किया था और हमने तुकाराम महाराज का बाल्यावस्था, उनकी बाल लीलाएं और घर की जो कठिन परिस्थिति और फिर वो किस प्रकार धीरे धीरे भक्त बन गए और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वप्न में दीक्षा दी. राम कृष्ण हरी माझा विठ्ठलाचा कैसा प्रेम भाव आपणची देव होय गुरु. स्वयं भगवान विठ्ठल उनके लिए गुरु बनकर आए. राघव चैतन्य केशव चैतन्य मंत्र दिला राम कृष्ण हरि और उन्होंने मंत्र दिया राम कृष्ण हरि और कीर्तन से हृदय में लीलाओं का प्रकाश, अभंग की रचना और इससे श्रद्धा अधिक उनकी दृढ़ होती गई. फिर हमने देखा कि रामेश्वर भट्ट के रूप में उनके जीवन में एक आघात हुआ, अभंग का विरोध हुआ, गाथा को इंद्रायणी नदी में पूरे डुबाया गया और 13 दिन के बाद स्वयं भगवान प्रकट होकर उन्होंने उनकी गाथा वापस देने का आदेश इंद्रायणी को दिया और इंद्रायणी ने स्वयं उपस्थित होकर उनकी गाथाएं वापस दी. और उसके बाद हमने देखा कि शिवाजी महाराज के पास
कुछ तथाकथित ब्राह्मणों ने उनकी कंप्लेंट करने के बाद स्वयं शिवाजी महाराज भी वहां पर आए, और शिवाजी महाराज भी उनका ज्ञान और वैराग्य देखकर उनके चरणों में गिर गए। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। तो आगे हम देख रहे कि किस प्रकार तुकाराम महाराज हमें आदेश देते हैं कि साधक के हर एक साधक का जो जीवन है, उसके जीवन में हर एक स्थिति में हमें साधु संग आवश्यक है। कभी कभी लगता है हम बहुत सीनियर हो गए, वरिष्ठ हो गए, तो मैं हर बार कहता हूँ देयर आर टू कैटेगरीज, वन इज सीनियर एंड अनदर इज सीनियर्स। एक है सीनियर और दूसरा है जिसने सिर्फ साल देखे, सीनियर्स। तो हम कोई भी परिस्थिति में क्यों न हो, हमें सदैव भक्तों का सानिध्य चाहिए, और यदि भक्तों का सानिध्य नहीं है तो फिर हमारा पतन कभी भी हो सकता है। तो तुकाराम महाराज कहते हैं, देव विसावा जाचे चित्ती त्याची घडावी संगती, सुखाने जो समाधानी त्याची संगती लाभावी आपणी, तुका म्हणे हवे प्रेमळ प्रभु नित्य राही त्याच्या मनात। तुकाराम महाराज कह रहे कि जिस व्यक्ति का मन भगवान में स्थिर है, उसकी संगति हमें सदैव प्राप्त होनी चाहिए। जो व्यक्ति सुखी और संतुष्ट है, जिसका मन भगवान में एकाग्र है, उनके साथ हमें रहना लाभकारी है। ऐसे प्रेम पूर्ण व्यक्तियों के साथ रहने से हमारे भीतर भी भगवान के प्रति निष्ठा और भक्ति दृढ़ होने लगती है। जैसे श्रीमती माता जी प्रभुपाद जी के एक शिष्या है, वो अपने ग्रंथ में लिखती है कि हमें ऐसे भक्तों का संग सानिध्य करना चाहिए जिन्होंने निर्धार किया है, दे हैव डिसाइडेड कि इसी लाइफ टाइम में, इसी जन्म में वो भगवत धाम जाने वाले हैं या भगवत धाम जाना चाहते हैं, इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ। तो ऐसे भक्तों का हमें संग सानिध्य कर लेना चाहिए, जिनके साथ रहने से हम भी इच्छा व्यक्त करें कि हम भी इसी जन्म में भगवत धाम जाए। नहीं तो कभी कभी हम ऐसे भक्तों के साथ रहेंगे जो स्थिर नहीं है भगवान के चरणों में, जिनका मन स्थिर नहीं है, तो फिर हम भी भक्ति में स्थिरता से प्रगति नहीं करेंगे। जैसे कई सारे भक्त कहते हैं कभी कभी चल जाता है 3.5 रूल्स, 2.5, कभी कभी 3, ऐसे नहीं होता। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स मीन्स 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो ऐसे जिन्होंने स्थिर और जिन्होंने पूरा निर्धार किया है, निश्चय किया है कि वो इसी जन्म में भगवत धाम जाएंगे। तो तुकाराम महाराज भी कह रहे कि जिनका मन भगवान के चरणों में एकाग्र हो चुका है, ऐसे भक्तों के सानिध्य में ही हमें रहना चाहिए। जैसे राजा कुलशेखर भी प्रार्थना करते हैं। आज हम तिरुपति से ये क्लास दे रहे, फ्रॉम तिरुपति, इस्कॉन तिरुपति। तो ये दक्षिण भारत तिरुपति में हम कल दर्शन कर रहे थे, कई सारे अलवार हुए, प्रसिद्ध अलवार, और ये 12 अलवार जो तमिलनाडु या दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हुए रामानुजाचार्य के पहले, जिन्होंने श्री संप्रदाय की धरोहर आगे बढ़ाई। ये 12 अलवार भगवान नारायण के अलग अलग शस्त्र, जैसे शंख चक्र गदा पद्म भगवान की कौमुदी की गदा है, शारंग पाणी भगवान का धनुष है, या सुदर्शन चक्र है, पांचजन्य शंख है, इसके अवतार है ये 12 अलवार। और इन्होंने रामानुजाचार्य के पहले दक्षिण भारत में वैष्णवता या शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। उसमें से एक अलवार हुए अलवार राजा कुलशेखर, जो राजा भी थे और भगवान के भक्त भी थे। जैसे तुकाराम महाराज शिवाजी महाराज के विषय में यहाँ पर जो प्रचार हुआ तो शिवाजी महाराज भी राजश्री कहा जाता है, उनको राजा भी थे और ऋषि भी थे। उसी प्रकार राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम आद्यैव मे विषमे मानस राज हंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। तो भगवान को प्रार्थना करे, भगवान अभी मेरा मन आपके चरणों में लगा हुआ है, और मेरा मन कैसे है, एक हंस के समान है।
और आपके चरण कमल के समान है। और जब मेरा मन है अच्छा कमल के समान, हंस के समान है, अभी उसको आपके चरण कमलों में लगा दीजिए, क्योंकि आगे चलकर इस शरीर में कफ, वात और पित्त बढ़ने लगेगा, तो पता नहीं आपका स्मरण होगा कि नहीं। इसीलिए अभी मेरा जब मन अच्छा है तभी आपके चरणों में लगा लीजिए। तो राजा कुलशेखर प्रार्थना कर रहे भगवान से। तो उसी प्रकार हमें भी ध्यान देना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे साथ प्रेम पूर्ण व्यक्ति है और जिन्होंने भगवान के चरणों में एकाग्रता प्राप्त की है, ऐसे भक्तों के सानिध्य में हमें रहना है। और हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ये संसार में दुख तो भयावह है ही, क्योंकि भगवान ने बनाया ही है दुखालयम, अशाश्वतम, अनित्यम, असुखम। ये भगवान ने बनाया ही है दुख पाने के लिए, और हम सुख तो ढूंढ नहीं सकते। थोड़ा बहुत मिलेगा अपने कर्मों के हिसाब से, मगर वो थोड़ा सा सुख भी हमें बहुत बड़ा दुख दे सकता है। तो फिर भी ये दुख भयावह है, और हमें इस दुख से भागने के लिए या दुख से दूर जाने के लिए सांसारिक सुखों की तरफ नहीं जाना चाहिए। जैसे हमने पिछले बार भी डिस्कस किया, कुंती महारानी जो कष्ट के लिए प्रार्थना कर रही है, तो परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज अपने शिक्षाओं में कहते हैं कि कुंती महारानी तो भगवान की शुद्ध भक्त थी, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान जितने कष्ट देने हैं दीजिए, एक के बाद एक, मगर हमें इतने कष्ट नहीं मांगने चाहिए। हमें भगवान से इतने ही कष्ट मांगने चाहिए जितना हम सहन कर सकते हैं। यदि हम भी कुंती महारानी के जैसे भगवान को प्रार्थना करें, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, और भगवान कृपा करके सारे कष्ट देने लगेंगे, तो फिर हम सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इतने सहनशील नहीं हैं। और इसीलिए महाराज कहते हैं कि हमें उतने ही संकट मांगने चाहिए, कष्ट मांगने चाहिए, जितने भगवान हम सहन कर सकते हैं। और इन कष्टों से भागने के लिए कभी भी हमें संसारिक सुख की तरफ भागना नहीं है। दूसरा, वो आदेश देते हैं कि अधिक से अधिक हमें साधुओं की संगति में रहना है, जो हमें सदैव भक्ति के मार्ग में टिकाए रखेंगे। जैसे कहा जाता है, हरि से बड़ा हरि का नाम, मगर हरि नाम से बड़ा भी हरि के भक्त है। जैसे हमने भरत महाराज के जीवन में देखा, भरत महाराज ने पूरी पृथ्वी का साम्राज्य एक क्षण में छोड़ दिया, जैसे व्यक्ति शौच क्रिया से बाहर निकलता है। उन्होंने देखा भी नहीं पीछे मुड़कर, मगर आसक्त हो गए हिरण के प्रति, और हरि हरि करना था, मगर अभी हिरण हिरण करने लगे। जब गायत्री या भगवान का ध्यान करने बैठते, तो उनको लगता मेरा भी एक छोटा सा हिरण आके मुझे स्पर्श करेगा, उसके जो नए नए सींग है उसका जब स्पर्श होगा तो मुझे ऐसे प्रतीत होगा कि प्राय मानो कोई मेरे ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों का पुष्पाभिषेक कर रहा है। तो उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हम भी यदि भगवान का ध्यान करते हुए संसारिक बातें हमें याद आ रही है, या संसारिक चीजों का हम चिंतन कर रहे, तो हमारा भी भक्ति में पतन होने का ये सिग्नल है, रेड सिग्नल, भक्ति में पतन होने का सिग्नल है। जब भगवान का ध्यान करने का प्रयास कर रहे मगर संसारिक विषयों का हम चिंतन कर रहे हैं, तब हमें पतन का ये संकेत है। और इसीलिए हमें अधिक से अधिक भक्तों के सानिध्य में रहने की आदेश तुकाराम महाराज दे रहे। संसारिक लोगों के संग करने में रुचि कम होने लगेगी और प्रपंच से पूरा मन हट जाएगा। जैसे हम साधुओं की संगति में आएंगे, जैसे देखिए यही शिक्षाएं हम भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी प्राप्त करते हैं। आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति से आत, और यही शिक्षाएं तुकाराम महाराज भी दे रहे। जब हम साधुओं की संगति में आएंगे तो संसारिक लोगों के संग में हमें रुचि कमी होगी, और फिर प्रपंच मतलब भौतिक संसार से हमारा मन पूरी तरह से हट जाएगा। फिर भगवान चित्त को आकर्षित करेंगे। जब भगवान के भक्तों के संग में हम रहेंगे, संसार से हमारा मन हट जाएगा,
तब भगवान हमारा चित्त आकर्षित करेंगे और हमें शास्त्र और भगवान में निष्ठा आएगी। द मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ गो इल टुगेदर। हम दोनों भी करना चाहेंगे तो होगा नहीं, धीरे धीरे कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं उसको ब्रेक लगाना होगा। हम दोनों भी करेंगे, जैसे हम कहते हैं ना, नामनो बला तो यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना। हम सुबह सुबह जप कर रहे और दिन भर पाप कर रहे, तो ऐसे पाप करने से हमें कभी भी हरि नाम में रुचि उत्पन्न नहीं होगी। नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना। और इसीलिए तुकाराम महाराज कह रहे, जब भगवान के भक्तों के सानिध्य में रहेंगे, संसार से आसक्ति नष्ट हो जाएगी, उस समय भगवान हमारा चित्त आकर्षित करेंगे। जो चित्त चुराने वाले चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, चोरी करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। हमको लगता है हम चोरी कर रहे, किसी के दिल की चोरी या किसी को हम चुरा रहे, मगर भगवान हमसे कहीं लाखों करोड़ों गुना एक्सपर्ट चोर है। चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, चित्त चोरी, कपड़ों की चोरी, मन की चोरी और कुछ भी, माखन चोरी, सभी चोरी करने में एक्सपर्ट है। इसीलिए एक अष्टक भी है, चौराग्र गण्यम, चौर अष्टकम, वो चोरी करने में कितने श्रेष्ठ है। जब हमारा शास्त्र और भगवान में निष्ठा बढ़ेगी, तब हमारी हमारी परंपरा जो है, परंपरा के आचार्यों के ऊपर निष्ठा बढ़ेगी। और जब हम आचार्यों की निष्ठा बढ़ेगी तो क्या होगा, जब हम निष्ठा से हजारों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब उनकी 1/6 भजन की शक्ति हमारे अंदर आती है। दिस इज द प्राइज और गिफ्ट वी आर एक्सेप्टिंग। ये एक देखिए कितना महत्वपूर्ण है। जब हम आचार्यों के विषय में सुनते हैं या आचार्यों के भजन गाते हैं, आचार्यों की जीवनी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो 1/6 उनका जो भजन की शक्ति है वो हमें भी प्राप्त होती है। और इसीलिए हमें आचार्यों की जीवन शैली या जीवनी हम सदैव चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। और इसीलिए हमारे संप्रदाय में जो आविर्भाव, तिरोभाव को भी इतना महत्व दिया गया है, उन आचार्यों का गुणानुवर्णन, गुण गौरव करने के लिए, जिससे उनके गुण हमें आए। थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान भावे हाच सापडे बोध खरा। थोर महात्मे मतलब बड़े बड़े संत महात्मे हो गए, और उनका चरित्र हम जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, और वो सुन के पढ़कर एक ही हमें शिक्षा मिलती है कि हम भी उनके समान, उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर सके, उनके पद चिन्हों पर चल सके। तो ये उन्होंने करणीय मतलब डूज कहा। अभी डोंट डूज क्या है, अकरणीय मतलब ये नहीं करना है। जैसे हमने देखा, पर द्रव्य पर नारी झाली विषाची परी, अम्हा घरी धन मूर्ति के समान। तो कह रहे, पर स्त्री का काम भाव से स्पर्श, दृष्टि, चिंतन या संभाषण, ये कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, अजामिल ने सिर्फ कुछ क्षणों के लिए एक शूद्र या वैश्या के साथ उनका संग देखा, कुछ क्षणों के लिए था, फॉर फ्यू मिनट्स, और उसका प्रभाव उनके जीवन पर 80 साल तक रहा, 80 इयर्स, 80 सालों तक। और 80 साल में उन्होंने भगवान का नाम नारायण नारायण लेना प्रारंभ किया। 80 साल के जब हुए, तब उनको नारायण लड़का प्राप्त हुआ था। वो भी भक्तों की कृपा से उन्होंने उसका नाम नारायण रखा। तो हम इस दुनिया में कितनी बार ये अलग अलग एडवर्टाइजमेंट या इस संसार के नंगा नाच देख रहे, तो कितना हमारा पतन होता हो। और इसीलिए जो ब्रह्मचारी कहते हैं कि आजकल की ब्रह्मचारी व्याख्या मतलब जिसकी शादी नहीं हुई वो ब्रह्मचारी है, मगर शास्त्र के अनुसार यदि देखा जाए, कायेन मनसः वाचा सर्वावस्थां तु सर्वदा सर्वत्र मैथुनम त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। कायेन मतलब शरीर से, मन से, वाणी से, हम जहां पर भी हो, कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो,
हम अंदर हो बाहर हो कहीं भी क्यों ना हो, हर परिस्थिति में, जैसे तुकाराम महाराज यहाँ कह रहे, स्पर्श हो, दृष्टि हो, बुरी दृष्टि, चिंतन हो या संभाषण हो, अपने इंद्रिय भोग के लिए कभी भी नहीं करना चाहिए। सेवा के लिए तो इस सलाह, वो तो माता है, माताओं के प्रति हमें आदर सम्मान होना चाहिए। जैसे एक वेश्या उनके घर पर आई उनको पथभ्रष्ट करने के लिए, और उन्होंने वेश्या को ही प्रणाम कर दिया, दंडवत प्रणाम। जैसे हरिदास ठाकुर का भी हमने पिछले बार चिंतन किया था कि हरिदास ठाकुर को भी हीरा नामक एक वेश्या पथभ्रष्ट कराने आई थी, और उनके समक्ष बैठकर हरिदास ठाकुर ने लगातार 3 दिन हरि कृष्ण महामंत्र का जप किया, 192 माला, 3 लाख नेम्स, और वो हीरा भी भक्त बन गए। उनका हृदय शुद्धिकरण हो गया हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त का संग करने के कारण, और वो हीरा लक्ष्य हीरा, मतलब 1 लाख नाम लेने वाली हीरा बन गई, लक्ष्य हीरा। उनको जीवन में हरि नाम का हीरा प्राप्त हो गया, साधारण हीरा नहीं। इसीलिए ध्रुव महाराज ने भी जब भगवान की भक्ति की या तपस्या की थी, किस लिए? अपने पिता उत्तानपाद से भी अधिक सुंदर या अधिक ऐश्वर्यशाली एक घर प्राप्त करने के लिए या स्थान प्राप्त करने के लिए। मगर जब भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान को उन्होंने प्रार्थना की, और वो कहने लगे, स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न याचे काचम अचिन्वम अपि दिव्य रत्नम। ये कांच के टुकड़े के पीछे मैं पड़ा था भगवान, मगर आपका दर्शन हुआ, ये मेरे लिए एक हीरे से भी बड़ा है, और इसीलिए मुझे अभी कोई वरदान या कोई वर की आवश्यकता नहीं है। स्वामीन कृतार्थोस्मि, मैं आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया, वरम न याचे, मुझे कोई वरदान की अपेक्षा नहीं है। दूसरा, तुकाराम महाराज कह रहे, छल कपट करके दूसरों का धन को छीनने का विचार हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। छल और कपट से कभी भी दूसरों का धन हमें प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। निंदा न करना, निंदा न सुनना। पापाची वासना नको दाऊ डोळा, त्याहुनी आंधळा बराच मी। निंदेचे श्रवण नको माझे कानी, बधीर करोनी ठेवी देवा। पापाचे बोलणे नको माझे मुखा, त्याहुनी मुक्का बराच मी। तुका म्हणे मज अवघाची कंटाळा, तू एक गोपाळा आवडीशी। तुकाराम महाराज कह रहे, पापाची वासना नको दाऊ डोळा। यदि मुझे कोई पाप देखना हो, उससे अच्छा क्या है, मैं अंधा हो जाऊं, उससे अच्छा मैं अंधा हो जाऊं, मुझे देखना नहीं। निंदेचे श्रवण नको माझे कानी, यदि मुझे किसी की निंदा सुननी है, उससे अच्छा मैं बधिर बन जाऊं, मैं गूंगा बन जाऊं, मुझे कोई सुनाई न दे। पापा से बोलने नको माझे मुखा, मुझे बोलना भी नहीं है, मुझे सुनना भी नहीं है, और बोलना यदि पड़े तो मैं मुक्को हो जाऊं, डम, डीप एंड डम जिसको कहते हैं, मुक्का बन जाऊं, बोलना ही नहीं है मुझे, निंदा किसी की करनी नहीं। तुका म्हणे मज अवघाची कंटाळा। हे तुकाराम महाराज करे, भगवान हे गोविंद, इस संसार में मैं परेशान हो चुका हूँ, सिर्फ आप ही मेरे एकमात्र रक्षक, पालक और उद्धारक है। आगे वे कह रहे, वर्ज पदार्थों का सेवन न करना। वर्ज पदार्थ मतलब मांसाहार, ये जो न खाने की चीजें हैं, उसका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। मन, वाणी अथवा शरीर से दूसरों को कष्ट या हिंसा न करना, चाहे मन से हो, वाणी से हो या शरीर से हो। मानसिक, वाचिक और शारीरिक। मानसिक मतलब मन से, वाचिक मतलब वाणी से, और शारीरिक मतलब शरीर से, कर्म के द्वारा। कभी कभी हम सुनते हैं कि कलयुग में जो मन में पाप होते हैं उसका कोई दंड नहीं है या उसका कोई अपराध नहीं लगता, मगर जो मन में है वो मुंह में, वाणी में आने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, और जो वाणी में है वो कार्य में आने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। और इसीलिए भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में जो कहे
ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। इसलिए जो मन में है वो करने के लिए मन इतना विचलित हो जाता है कि वो करना ही पड़ता है। अगर वो नहीं कार्य मिला या उसकी इंद्रिय तृप्ति नहीं हुई तो फिर क्रोध जन्म लेता है। ये मनुष्य शरीर हमें इस भव सिंधु को पार करके लेकर जाने वाला एक साधन है, और ये भक्ति, ये बोट है। इस भौतिक संसार में ये भक्ति किस प्रकार, इस्कॉन, श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, इस्कॉन एक बोट के समान है और उसके कैप्टन स्वयं श्रील प्रभुपाद जी। तो कभी कभी कष्ट आएंगे संस्था में भी, कभी कभी सेवा के द्वारा या वैष्णव के इतने संग में। दो चूड़ियां भी, कंगन एकत्र आती है तो आवाज आने लगती है, दो बर्तन भी साथ में आते हैं तो आवाज होते हैं। तो इतने सारे भक्त, उनके अलग अलग विचारधाराएं, उनके संस्कार, इतने अलग अलग भक्त, अलग अलग जीव एकत्रित आएंगे तो कभी ना कभी तो ऊपर नीचे आवाज, या सेवा के दौरान कुछ ना कुछ तो होना है। तो हमें गांठ बनाकर नहीं रखनी चाहिए। उसी समय जो भी अपराध हुआ, उन भक्तों के जो दयावान है, कृपा सिंधु हे वच, जो वैष्णव कृष्ण की कृपा देने वाले हैं, उनसे प्रणाम करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए उनको क्षमा याचना करनी चाहिए। और कुछ भी हो, इस बोट से उतरना नहीं है। अगर बोट से कूदने का प्रयास करेंगे तो फिर हम भवसागर में डूब जाएंगे, क्योंकि सारा संसार ही संसार है। भौतिक संसार का ये भव सिंधु मतलब सागर है, समुद्र। मुझे याद है जब मैं यूएस में था, न्यू जर्सी में ही था, तो वल्लभाचार्य प्रभु मुझे लेकर गए थे द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाने के लिए। तो संसार का जो समुद्र है, बोट में ही रहना, कुछ भी कष्ट ऊपर नीचे हो, कुछ मिले न मिले, गर्मी लगे सर्दी लगे, बोट में ही रहना है। अगर हमने सोचा अरे बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत चिल्ला चिल्ली कर रहे लोग, बहुत यहाँ में परेशान हो रहा हूँ, चलो मैं कूद जाता हूँ, कूद जाता तो फिर मैं आज यहाँ उपस्थित नहीं होता, फिर वो संसार में, उस भव सागर में ही डूब जाता। तो इसीलिए कष्ट तो होने हैं ही, तो हमें सहनशील होने का जो तुकाराम महाराज हमें बता रहे हैं। नाम रूपी बीज में भगवान के गुण, रूप, लीला का वृक्ष छुपा हुआ है। जब हम नाम लेंगे उस समय उसी नाम में भगवान का नाम, रूप, लीला, उसका जो वृक्ष है, वो वृक्ष उस नाम में छुपा हुआ है। और इसीलिए तुकाराम महाराज प्रार्थना करते हैं, सदा माझे डोळा जडो तुझी मूर्ती, रखुमाईच्या पती सोयरिया, गोड तुझे रूप, गोड तुझे नाम, देई मज प्रेम सर्व काळ, विठो माऊली हाची वर देई, संचरो निराही हृदया माझी, तुका म्हणे काही न मागे आणिक, तुझे पायी सुख सर्व आहे। तुकाराम महाराज कह रहे, सदा माझे डोळा जड़ो तुझी मूर्ति। सदैव भगवान में जब भी आंखें खोलो, आंखों के सामने सिर्फ आपका ही मूर्तिमंत स्वरूप दर्शन हो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, हे जगन्नाथ जब भी मेरे नेत्र के पथिक आप बन जाए, जहां भी मैं देखूं जगन्नाथ आपका दर्शन हो। तो यही तुकाराम महाराज प्रार्थना कर रहे, आपकी मूर्ति का दर्शन हो। रखुमाई चा पति सोयरिया, रखुमाई मतलब रुक्मिणी के पति, और मेरे जो सदैव ऑलवेज मेरे वेल विशर आप है। गोड़ तुझे रूप, आपका नाम इतना मधुर है, इतना मीठा है, उसी प्रकार आपका नाम भी और आपका रूप भी बहुत मीठा है। मगर हम इस भौतिक संसार में होने के कारण, इस भौतिक संसार की पीलिया या जॉन्डिस हमें हुआ है। इस भौतिक संसार में रहने के कारण हमें क्या हुआ है, जॉन्डिस हुआ, इसीलिए वो मीठा नाम हमें कड़वा लग रहा है।
जैसे नाम लेते ही नींद आ जाती है, जैसे नाम लेते हैं 10 बार घड़ी देखने लगते हैं, जैसे नाम लेने लगते हैं तो फिर लगता है अरे बाप रे कब ये कथा समाप्त होगी, घर जाना है, सब चीजें याद आने लगती है। क्योंकि जॉन्डिस हुआ इसलिए मिठास नहीं आ रही है। बराबर जप करने के लिए जप माला हाथ में लेते तभी आ जाता अरे बाप रे उन्होंने तो मेरे से 50 रुपए लिए थे लास्ट वेडनेसडे मांग के लिए थे, अभी तक दिए नहीं, तुरंत वही उसी समय याद आएगा क्योंकि जॉन्डिस के कारण। मगर ये नाम इतना मीठा है, ये शुगर केन जैसे है, और जॉन्डिस के लिए दवाई भी शुगर केन का जूस ही है। तो ये मीठा नाम हम जैसे ही लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे तो एक दिन ये जो जॉन्डिस की कड़वाहट, ये हमारी टेस्ट जो है कड़वी टेस्ट वो निकल जाएगी और ये मिठास हमें प्राप्त होगी। गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम देई मज प्रेम सर्व काल। और यही भगवान आप अपना प्रेम मुझे सदैव देते रहिए। विठू माऊलिए हाची वर दे, मुझे वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए? कि मेरे हृदय में आप ही सदैव रहेंगे। संचोरने राही हृदय माझी, आप सदैव मेरे हृदय में वास कीजिए। तुका म्हणे काही न मांगे आने का, और मुझे भगवान कुछ नहीं चाहिए, कोई मेरी अपेक्षा या कोई वरदान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके ही चरणों में सभी सुख है। तुझे पाई सुख सर्वाहे, आपके चरणों में ही सदैव सुख मुझे प्राप्त होता है। तो देखिए नाम में ही भगवान के गुण रूप लीला इसका वृक्ष छुपा हुआ है। तुकाराम महाराज का बहुत बड़ा सिद्धांत है। जैसे हम नाम लेंगे तो नाम हमें सारा गुण रूप लीला अपने आप दर्शन कराएगा। भक्ति में सेवा से नाम रुचि बढ़ेगी। तो प्रश्न हो सकता है कि प्रभु जी नाम रुचि के लिए तो आपने कहा नाम रूपी बीज भगवान का गुण रूप लीला दिखाएगा, मगर नाम में रुचि कैसे उत्पन्न करे? तो वो होती है भगवान की सेवा के द्वारा। जब हम भगवत भक्तों के सानिध्य में भक्तिमय सेवा करते हैं तो नाम में रुचि अपने आप बढ़ने लगती है। तुकाराम महाराज कह रहे स्वर्ग के देवता भी राह देख रहे हैं कि कब उन्हें मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। मृत्यु लोक मतलब ये पृथ्वी, जहां पर पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, पुनः जन्म पुनः मृत्यु है, इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया है। कब हमें मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म होगा और भजन करके वह भगवान को प्राप्त करेंगे। ये उनकी इच्छा है देवताओं की कि स्वर्ग के लोग भी उन्हें इधर आकर भगवान की भक्ति करनी है। मगर हमारा मनुष्य जन्म होने के बावजूद हम भगवान को नकार रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा नरोत्तम दास ठाकुर का प्रसिद्ध भजन प्रभुपाद जी गाते थे, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाए नो। मनुष्य जन्म पाइया, मनुष्य का जन्म तो मिला, राधा कृष्ण ना भजिया, राधा और कृष्ण का भजन नहीं किया, तो क्या किया? जानिया सुनिया, जानबूझकर समझकर हमने क्या किया है? विष खा लिया है या विष खा रहे हैं। ये नरोत्तम दास ठाकुर का भजन श्रील प्रभुपाद जी का बहुत प्रसिद्ध भजनों में से एक है। प्रभुपाद जी बारंबार इसको गाते थे, जानिया सुनिया विष खाइनो। तो तुकाराम महाराज कह रहे इस संसार को, संसार में रहकर इस संसार को कैसे पार करे? तो तुकाराम महाराज कह रहे नट नाट्य अवघे रचिले सोंग, म्हणे तुकोबा खेळू नये भोंग। तो तुकाराम महाराज कह रहे इस अभंग में कि संसार नट और नाटक भूमिका जैसा है। यहाँ हर एक व्यक्ति अलग अलग विभिन्न भूमिकाएं निभा रहा है, लेकिन इस नाटक जैसे संसार में फंसने के बजाय हमें अपने वास्तविक जीवन के उद्देश्य को समझकर भक्ति में लगना चाहिए और पूर्ण विश्वास रखना चाहिए भगवान के ऊपर। ये कैसे हमारा जीवन एक ड्रामा, नाटक मतलब ड्रामा, ये ड्रामा हम कर रहे इस संसार में। कोई पिता बना है, कोई माता बना है, कोई लड़का बना है, कोई लड़की बनी है, बहुत सारे हमारे रिलेशन बने हैं, मगर ये हमारे शाश्वत रिलेशन नहीं है। स्वप्न
सुसुप्ति, एक है जो स्वप्न हम रात्रि में देखते हैं, और ये जो स्वप्न हम देख रहे हैं दिन में भी देख रहे हैं। 100 साल का लंबा सपना ही है। कोई 100 साल देख रहा है, कोई 70 साल देख रहा है, मगर ये सारा एक सपना ही है जो लंबा सपना है। जैसे हमें लगता है ब्रो जी ऐसे थोड़ी होता है, इतना बड़ा सपना थोड़ी होगा। जैसे हमारी रात होती है 12 आवर्स, शाम के समय में 7-8 बजे या 6 बजे के आसपास मच्छर है, मॉस्किटो, वो जन्म लेता है, अंडे से बाहर आके जन्म लेता है, उसका शरीर बढ़ने लगता है, उसकी शादी होती है, वो बच्चे पैदा करता है, वो बूढ़ा होता है और सुबह 6 बजे तक मर जाता है। 6 to 6 मैक्सिमम, 12 आवर्स। तो उसकी जीवन आयु 100 साल, जीवन आयु मतलब हमारे 12 साल हो गए। तो उसी, क्षमा कीजिए, हमारे 12 घंटे हो गए। उसके 100 साल मतलब हमारे 12 घंटे हो गए। तो उसी प्रकार हमारे 100 साल मतलब देवी देवताओं के लिए ज्यादा नहीं है, 100 दिन के समान है। क्योंकि स्वर्ग में हमारे 6 महीने मतलब एक दिन, और हमारे 6 महीने मतलब एक रात। 6 months is equal to 1 night, and another 6 months is equal to another day. Means 24 hours. 365 days is equal to 365 days for demigods. तो वही है। तो इसीलिए इस नाटक में या इस संसारिक नाटक में हमें बिना अटके भगवान पर पूरी तरह से विश्वास रखते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। इनमें वे जीवन की क्षण भंगुरता, संसार के नाटक जैसे स्वरूप और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखने की वो प्रेरणा हमें दे रहे हैं। तो तुकाराम महाराज का प्रसिद्ध जो ये जीवनी हम देख रहे हैं, और उनका प्रसिद्ध जो अभंग हम सदैव गाते हैं, या सदैव उन्होंने जैसे ही भगवान का दर्शन किया, भगवान का दर्शन करते हुए उन्होंने भगवान से जो प्रार्थना की, सुंदर ते ध्यान उभे बेटे बरी, कर कटावरी ठेओनिया, तुलसी हार गळा कासे पीतांबर, आवडे निरंतर हेची ध्यान, मकर कुंडले तळपती श्रवणी, कंठी कौस्तुभमणी विराजित, तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख, पाहिन श्रीमुख आवडीने, सुंदर थे ध्यान उभे विटेवरी। अपने भक्त पुंडलीक को मिलने आए थे। पुंडलीकाचे भेटी परब्रह्म आलेगा, चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा, जय देव जय पांडुरंग, रखुमाई वल्लभा राई चा वल्लभा पावे जीवलग। जैसे हमारे भव कुलकर्णी जी यहाँ पर उपस्थित है, तो मंदिर में यही आरती गाते हैं। योगे 28 विठेवर योभा, वामांगी रखुमाई दिति दिव्य शोभा, पुंडली काचे भेटी परब्रह्म आलेगा। साक्षात परब्रह्म भगवान द्वारकाधीश कृष्ण अपने भक्त को, पुंडली को मिलने आए, और जब उन्होंने ईंट दी, उस ईंट के ऊपर खड़े हो गए। योगे 28 युगों से वो खड़े हैं अपने भक्त को दर्शन देने के लिए, और उन्होंने इच्छा की पुंडलिक ने कि आप यहीं पर खड़े हो जाओ बस। सुंदर अते ध्यान, इतना सुंदर ध्यान, उभे विटेवरी, कर कटावरी, कमर के ऊपर हाथ रख के वेट कर रहे। दो कारण, एक तो वेट कर रहे, और दूसरा कह रहे जो व्यक्ति मेरे चरणों में आ जाते उसके लिए भौतिक संसार ये कमर जितना हो जाता है, बस कमर के नीचे है। और वेट कर रहे कभी सभी आएंगे, न्यू जर्सी के भक्त, बड़गन के भक्त कब आएंगे पंढरपुर दर्शन करने के लिए। विश्व का, इस ब्रह्मांड का एक मंदिर, विष्णु मंदिर या वैष्णव मंदिर, जिस मंदिर में हम भगवान के पास, भगवान के गर्भगृह के अंदर जाकर भगवान के चरणों पर अपना माथा रख सकते हैं, अपना सर रख सकते हैं। पहले तो इतना आनंद था कि भगवान को आलिंगन किया जाता था, भगवान को आलिंगन दिया जाता था इतने आनंद के द्वारा। तो का म्हणे मज न उरेची वेगळी, गोविंद गोविंद मना लागलिया छंद,
भगवान गोविंद इतना मन में आपके प्रति एक आनंद आ गया, इतना आसक्ति बढ़ गई कि भगवान सिर्फ गोविंद बस। और भगवान एक ही, जब मैं आपको आलिंगन करता हूं तो मेरे हृदय में दूसरी कोई कामना या कोई इच्छा नहीं। तो पहले था, मगर आजकल कई सारे जो समाज कंटक या जो तथाकथित द्वेषी, धर्म द्वेषी या धर्म के हिंसक है, उनके द्वारा मंदिर में अलग अलग प्रकार से मंदिर को उड़ाने का, या जब मंदिर में भगवान को कष्ट देने का प्रयास किया गया, तब से फिर आलिंगन बंद किया। अभी हम सिर्फ चरण पर हम अपना माथा रख सकते हैं। तो जल्दी से आइए, जल्द से जल्द, पता नहीं वो भी आगे वाले समय में कोई गवर्नमेंट आकर चेंज हो जाएगा। जैसे हम कुछ दिन पहले आर्टिकल पढ़ रहे थे, इंडिया में बहुत अभी भारत में प्रसिद्ध चल रहा है वक्फ बोर्ड, मुसलमान की जो प्रॉपर्टी, लैंड एंड प्रॉपर्टी का। तो कह रहे थे इलेक्शन के पहले महाराष्ट्र में कि पंढरपुर विठल मंदिर भी हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और यदि हमारी सरकार जीत कर आएंगी तो हम सभी वारकरी भक्तों को धक्के मारकर पंढरपुर से बाहर निकालेंगे। तो देयर इज नो गारंटी, उन्होंने लिखा है ऐसे उनके भाषण में, उनके आर्टिकल्स में, दे हैव टोटली डिक्लेयर्ड। जैसे अभी भी हमने सुना कि कुंभ मेले की जो, कुंभ मेला त्रिवेणी प्रयागराज का जो स्थान है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, पर उनको पता नहीं, मूर्खों को, लाखों वर्षों से ये कुंभ मेला हो रहा है, लाखों वर्षों से, और वो कैसी जमीन हो सकती है। तो एनीवे, मगर आप सभी जल्द से जल्द प्लान कीजिए, जब भी भारत में आएंगे तो पंढरपुर हमें आवश्यक अपना प्लानिंग करना ही है। हम सभी डिवोटीज मायापुर, वृंदावन जाते ही हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, मगर पंढरपुर जितना जल्दी हो सके, whenever you are coming next time, you should plan Pandharpur. The nearest airport is Pune and nearest railway station is Pandharpur and Solapur. So I'll arrange everything. Please, आप प्लान कीजिए। तो तुकाराम महाराज जो कह रहे, कर कटावरी ठेवनिया, तुलसी हार गड़ा कासे पीतांबर। देखिए माधवी सीता माता जी ने जो यहाँ पर अपना डीपी रखा है जूम का, उसमें तुकाराम महाराज जो कह रहे, वो पूरा गले में तुलसी की माला, कितनी सारी तुलसी की माला है। तुलसी हार गड़ा कासे पीतांबर, कमर पर उन्होंने पीतांबर धारण किया है। आवड़े निरंतर हे चे ध्यान, सुंदर ऐसा जो ध्यान है। मकर कुंडले तळपति श्रवणी, मकर मतलब मछली जैसा उन्होंने कान के बालिया भगवान ने धारण की है। कंठी कौस्तुभ मणि विरजित, कंठ पर कौस्तुभ मणि धारण किया है। तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख, पाहीन श्रीमुख आवडीने। हे भगवान, को तुकाराम महाराज कह रहे, भगवान यही मेरा सबसे अधिक सुख है, और भगवान आपका मुखारविंद देखना यही मेरा एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो मुझे अच्छा लगता है। समचरण दृष्टि विटेवरी साजरी, तेथे माझा हरी वृत्ती राहो, आणि कन लगे माईक पदार्थ, तेथे माझे अर्थ नको देवा। ब्रह्मादिक पदे दुखाची शिराणी, तेथे दूषित झडी जडो देसी। तुका म्हणे त्याचे कळले आम्हा वर्म, जे जे कर्म धर्म नाशवंत। समचरण दृष्टि विटेवरी साजरी, भगवान जो इस वीट के ऊपर खड़े हैं, सुंदर ऐसे भगवान का जो ध्यान है, ऐसा ध्यान मेरे चित्त में समा जाए। आणिक लगे न माईक पदार्थ, इस माया सृष्टि के, इस संसारिक सृष्टि का कोई भी वस्तु भगवान मुझे नहीं चाहिए, या मुझे संसार से कोई अपेक्षा भी है, कोई इंटरेस्ट भी है। ब्रह्मादिक पदे दुखाची शिराणी, जो लोग कहते हैं कि इस ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहिए, ब्रह्म निराकार है, वो मूर्ख है, वो दुख प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि भगवान निराकार नहीं, साकार भगवान का रूप है। तेथे दुष्ट झड़ी जड़ो देसी, जो निराकार में जाने वाले उनका पतन निश्चित होने वाला है। तुका म्हणे त्याचे कळले आम्हा वर्म, हमें पता चल गया भगवान कि ये जो तथाकथित कर्म हम संसार में कर रहे हैं, ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। और इसीलिए
हम भगवान आपके चरणों में आनंद से आपकी भक्ति करने में लगे हैं। जब भगवान, जैसे हमने देखा आज कि तुकाराम महाराज वैकुंठ जा रहे थे, तो वैकुंठ की लीला तो एकदम विशेष ऐसी है, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि सिर्फ दो व्यक्ति सदेह, मतलब इस विद दिस ग्रॉस बॉडी दे वेंट बैक टू होम, बैक टू गॉड, इट नॉट विद सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी। एक ध्रुव महाराज और दूसरे तुकाराम महाराज। तो जो गांव है तुकाराम महाराज का, देहू गांव जिसको कहते हैं, देहू इंद्रायणी नदी के तट पर है। पुणे से इट्स ऑलमोस्ट 20-22 किलोमीटर्स। और वहां पर विठल मंदिर है। तो विठल मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि एक दिन जब तुकाराम महाराज की पत्नी गुस्से से मंदिर में गई, एक ग्लास लिया, उबलते हुए बॉइल्ड मिल्क, हॉट, वेरी हॉट बॉइलिंग मिल्क उन्होंने लिया और मंदिर में गई और भगवान को कहा, अभी के अभी आपको ये दूध पीना होगा, अभी के अभी, तुरंत पीना होगा, इमीडिएटली। अगर आप नहीं पिएंगे तो मैं जाके संसार में बताऊंगी कि आपका जो तुकाराम नामक भक्त है वो क्या करता है, स्वयं भोग लगाने के लिए हर रोज आता है, खुद खाता है और कहता है कि भगवान ने खा लिया, क्योंकि भगवान को हर रोज खिलाते थे। भगवान अपने भक्तों के द्वारा दिया गया प्रेम से, भक्ति से, अश्नामी प्रयतात्मनः, अश्नामी मतलब मैं उसको स्वीकार करता हूं। हा नाम्याची खीर साखतो, चोखोबाची गोरे राखतो, पुरंदराचा हा परमात्मा। जैसे तुकाराम महाराज जैसे अनेक संतों ने भगवान की प्रार्थना की है। नाम्याची खीर साखतो, नामदेव महाराज जब छोटे थे और खीर लेकर गए भगवान को खिलाने के लिए, और भगवान को कहा, भगवान खीर खाइए, क्यों नहीं खा रहे आज? बोले हर रोज तो खाते, माता पिता लेकर आते, आज क्यों नहीं खा रहे? मैं छोटा हूं इसीलिए। बोले भगवान कहे, नहीं ऐसे कैसे मैं खा सकता हूँ? बोले क्यों? बोले फिर मैं खीर खाने लगूंगा तो यहाँ कौन खड़ा होगा दर्शन देने के लिए? अरे बस इतना ही। बोले मैं खड़ा हो जाता हूँ। और रामदेव महाराज छोटे जो थे वो कहने लगे कि मैं खड़ा हो जाता हूँ ईंट के ऊपर हाथ रख के, आप तब तक खा लो। तो भगवान खा रहे थे। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा जैसे हम उनको खिलाते नहीं। तो जैसे तुकाराम महाराज भी हर रोज खिलाते थे और कहते थे भगवान खा लिए, तो उनकी पत्नी को लगता था, अरे ये पत्थर कैसे खा सकता है, ये तो काला पत्थर है, ब्लैक पत्थर, ये कैसे खा सकता है, ब्लैक स्टोन। तो गर्मा गर्म दूध उबलता हुआ लेकर आए, कहीं भगवान अभी के पी लो। अपने भक्त की निंदा न हो इसीलिए भगवान ने वो गरम गरम दूध का प्याला या दूध का ग्लास उठाया, पीने लगे तो ओठ जल गए भगवान के। और आज भी ऑलमोस्ट 400 वर्षों के बाद भी आज हम दर्शन के लिए जब मंदिर में जाएंगे देहू गांव में, तब भगवान के ओठ जले हुए मिलेंगे। भगवान के ओठ जले, और पुजारी को पूछेंगे भगवान के ओठ ऐसे क्यों है, तो कहेंगे कि भगवान ने गर्म दूध पिया था इसीलिए भगवान के ओठ जले हैं। तो ये विठल के प्रति भगवान का प्रेम, या भगवान का तुकाराम महाराज के प्रति प्रेम, अपने भक्त की निंदा न हो इसीलिए अहम भक्त पराधीन। भगवान कुछ भी कष्ट अपने भक्त के लिए उठाने के लिए तैयार हो। जब एक दिन भगवान को संदेश भेज, भगवान का चिंतन हो रहा था आषाढ़ी के लिए, सभी भक्त देहू से पंढरपुर जा रहे थे आषाढ़ी एकादशी के लिए। तो तुकाराम महाराज बहुत बीमार थे, वो नहीं जा पाए। तो उन्होंने गांव के एक भक्त से, वारकरी भक्त को एक चिट्ठी लिख के दी कि भगवान को चिट्ठी दे दो। और वो वारकरी भक्त, वैष्णव भक्त भगवान को पढ़ने लगे, भगवान तुकाराम बीमार है इसीलिए इस बार नहीं आ पाए, क्षमा कीजिए। तो तुकाराम महाराज की ये स्थिति देखकर, दशा देखकर भगवान तैयार हो गए जाने के लिए। बोले मैं चला जाता हूँ, आप नहीं आ सकते तो क्या, मैं आ जाऊंगा आपके पास। तो गरुड़ को बुलाया और तुरंत भगवान जाने के लिए तैयार हो गए। मगर रुक्मिणी ने कहा, भगवान लाखों भक्त आपके दर्शन के लिए खड़े हैं, उनका क्या होगा? आप एक काम कीजिए, गरुड़ को भेजिए और गरुड़ भगवान का गरुड़ जो वाहन है वो लेकर जाएगा और तुकाराम महाराज को
लेकर आएगा। देखिए भगवान ने स्वयं अपने वाहन को भेजा। तो ये भगवान का प्रेम है उनके प्रति। मगर तुकाराम महाराज गए नहीं, बोले ये तो मेरे भगवान का स्थान है, मेरे स्वामी का वाहन है, मैं कैसे इसके ऊपर चरण रख सकता हूं। महाराज जी कल बता रहे थे इन 1985 जब पदयात्रा प्रारंभ हुई 1984 में, चैतन्य महाप्रभु का 500th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए मायापुर में, तो द्वारका से मायापुर जाना था पदयात्रा, 2 साल लगे उनको फ्रॉम द्वारका टू मायापुर। तो 85 में दे पदयात्रीज अराउंड 200 डिवोटीज दे केम टू तिरुपति आल्सो। और महाराज कह रहे थे उस समय हम निताई गौर सुंदर को लेकर सर के ऊपर पर्वत चढ़ गए थे। पर्वत पर चलते चलते गए बालाजी का दर्शन करने के लिए। मगर रामानुजाचार्य देखे कि ये पर्वत मतलब साक्षात अनंत शेष है, और वो पर्वत के ऊपर चढ़े नहीं, ऐसे घुटने टेकते हुए गए, चरण स्पर्श नहीं किया पर्वत के ऊपर। क्योंकि ये जो पर्वत है, बालाजी के जो 7 पर्वत है, वेंकटाद्रि, गरुड़ाद्रि, ये जो पर्वत है, ये पर्वत मतलब स्वयं अनंत शेष है, भगवान का जो रक्षण कर रहे। तो उन्होंने पैर से स्पर्श नहीं किया। इसी प्रकार तुकाराम महाराज भी सोचने लगे ये तो मेरे भगवान का वाहन है, मैं नहीं जा सकता। मगर एक समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए और तुकाराम महाराज प्रार्थना करने लगे, गरुड़ा से वारिक कासे पीतांबर, सावळे मनोहर कै देखे न, बरवया बरवंटा घन मेघ सावळा, वैजंती माळा गळा शोभे, मुकुट माथा कोटी सूर्यांचा झळाळ, कौस्तुभ निर्मळ शोभे कंठी, अतिव श्रीमुख सुखांचे सकळ, वामांगी बेल्हाळ रखुमा देवी, उद्धव अक्रूर उभे दोही कडे, वर्णिती पवाडे सनकादिक, तुका म्हणे नवे आणि का सारिखा, तोची माझा सखा पांडुरंग, गरुडाचे वारिक कासे पीतांबर, गरुड़ जिनका वाहन है और जिन्होंने पीतांबर धारण किया है। और यही गरुड़ है जिस गरुड़ ने गजेंद्र का भी उद्धार कर दिया था। गजेंद्र मोक्ष लीला भागवत के 8वें स्कंद में आती है। तो गजेंद्र का उद्धार करने के पहले भगवान ने मगरमच्छ का उद्धार कर दिया। क्यों? लोग कहते हैं अरे भगवान ने गजेंद्र की मुक्ति करानी चाहिए थी। मगर गजेंद्र तो भक्त था, गजेंद्र के चरणों का आश्रय मगरमच्छ ने लिया था, एक भक्त के चरणों का आश्रय। इसीलिए मगरमच्छ पहले मुक्त हो गया इस कष्ट से। तो ये भगवान का सुंदर सा बड़ा मतलब काल घन इव श्याम, रामचंद्र प्रभु के आप पीछे देखेंगे डीपी पर, घन इव श्याम, काले घनश्याम जो है, घन आकाश में जो काले बादल उनके जैसा उनका रंग है। घन मेघ सावड़ा, घन मतलब जो बारिश के जो बादल है। देखिए महाराज जी का नाम रघुनाथ भगवान पाटिल, और महाराज जी के पिताजी का नाम भगवान सावड़ा पाटिल। सावड़ा मतलब विठल, भगवान सावड़ा, सावड़ा मतलब ये काले रंग वाले। इसलिए महाराज कहते हैं मैं भगवान का पुत्र हूँ। भगवान पिताजी का नाम, इसलिए मैं भगवान का पुत्र हूँ, और है भी भगवान के पुत्र, और पिता भी भगवान ही है। तो सावड़ा मतलब घन इव श्याम, वैजयंती माला गला शोभे, गले में वैजयंती माला। जैसे भागवत में भी 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में सारी गोपियां प्रार्थना करती है, बरहा पीडम नट बर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रद्भासां कनककपिशं वैजयन्तीं च मालान्, रन्ध्रान् वेणुरधरसुतयः स्फुरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय वेणु गीत, उसका ये 5 नंबर का टेक्स्ट है, टेक्स्ट नंबर 5 वेणु गीत का। उसमें तो यही प्रार्थना गोपियां भी कर रही है। भगवान ने मोर पंख लगाया, गले में वैजयंती माला है, मुकुट माथा कोटि सूर्यांचा झळाळ, जो मुकुट धारण किया भगवान ने, करोड़ों सूर्य का प्रकाश जैसे उसमें से चकमकाहट निकल रही है।
कौस्तुभ निर्मल शोभे कंठी, कंठ पर कौस्तुभ है। भगवान का सुंदर मुख, वामांगी बल्हाड़ रखमा देवी, वाम अंगी भगवान की रखमा देवी खड़ी है भगवान के बाजू में। उद्धव अक्रूर उभे दो ही कड़े, एक बाजू में भगवान के उद्धव है और एक साइड में अक्रूर जी है। और क्या कर रहे, सनक आदिक चतुष कुमार जो है भगवान का गुणगान कर रहे, भगवान की स्तुति कर रहे। तुका म्हणे नवे आनी का सारखा, जैसे बाकी के लोगों के मित्र होते ऐसे मित्र नहीं है मेरे। मेरे मित्र कौन है, पांडुरंग, सखा पांडुरंग। मेरा मित्र कोई ऐसे ऐरा गहरा नहीं है, कोई साधारण नहीं है। मेरा मित्र कौन है, स्वयं नारायण भगवान मित्र है। और ऐसे प्रार्थना करते हुए उनको ज्ञात हुआ कि भगवान मुझे अभी लेने के लिए आए हैं और ये जीवन समाप्त करके मुझे भगवत धाम अभी वापस जाना है। उस दिन उनकी पत्नी घर में पूरन पोली बना रही थी। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध पूरन पोली, चने के दाल से बनता है स्वीट डिश पूरन पोली। तो पूरन पोली बना रही थी, उनको लगा अभी तुकाराम महाराज आएंगे, भोजन करेंगे लड़कों के साथ वगैरह। तो उनके घर में संदेश मिला, रहे पूरन पोली क्या बना रहे, तुकाराम वैकुंठ जा रहे, चलो। उनको लगा वैकुंठ जा रहे मतलब कहीं कीर्तन के लिए जा रहे, वैकुंठ भू वैकुंठ नामक कोई मंदिर वगैरह है, स्थान है, वहां जाएंगे और कीर्तन करके वापस आएंगे। एक माळशिरस नामक गांव है पंढरपुर के पास, वहां पर हनुमान जी का एक मंदिर है और हनुमान जी सो रहे से, खड़े खड़े सो रहे। तो प्रश्न पूछा, रहे हनुमान जी क्यों सो रहे? तो उस मंदिर में तुकाराम महाराज कीर्तन करने के लिए जाते थे और तुकाराम महाराज कीर्तन करते थे, इतना पूरी रात वो दंग हो जाते थे कीर्तन में, इतने आनंद से कीर्तन करते। मगर पूरी रात सभी भक्त नहीं बैठते थे, सब लोग एक 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 उठकर चले जाते। तो सारे उठ के चले गए, एक ही व्यक्ति था वहां पर बैठा हुआ। तो बोले अरे सब लोग चले गए, आप क्यों नहीं गए? बोले जो मेरा कंबल है, कंबल मेरी शॉल, वो आपके पैरों के नीचे है। बोले ठीक है ले लो। तो फिर कंबल भी दे दिया, वो भी चला गया। फिर देखा सब लोग चले गए, सिर्फ हनुमान जी कीर्तन सुन रहे। तो हनुमान जी को तुकाराम महाराज कह रहे, आप क्यों कीर्तन सुन रहे, आप भी सो जाओ, अभी पूरी बहुत लेट नाइट हो गए। तो ऐसे सो गए, तो ऐसे ही वो सोए हुए हैं। तुकाराम महाराज के आदेश से हनुमान जी भी सो गए। तो उसी प्रकार उनको लगा कहीं जा रहे होंगे कीर्तन के लिए। तो जब भागते भागते आई तब तक तो लेट हो चुका था। और कीर्तन के रंग में जैसे हमने अभी देखा शुरुआत में, सारा गांव, रामेश्वर शास्त्री जो मूछ वाले हैं पगड़ी के साथ, वो है रामेश्वर शास्त्री, जिन्होंने आदेश दिया था ये ग्रंथ या गाथा पानी में डुबाने के लिए इंद्रायणी में। वो सारे संगति में आकर तुकाराम महाराज अभी कहने लगे, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, राम राम घ्यावा, आमचा राम राम घ्यावा, तुमची आमची हेची भेटी, हे थुनिया जन्म तोटी, हे थुनिया जन्म तोटी, हे थुनिया जन्म तोटी, आता सो द्यावी दया, तुमच्या लागत असे पाया, लागत असे पाया, तुमच्या लागत असे पाया, येता निज धामी कोणी, विठ्ठल विठ्ठल बोला वाणी, विठ्ठल विठ्ठल बोला वाणी, विठ्ठल विठ्ठल बोला वाणी, राम कृष्ण मुखी बोला, तुका जातो वैकुंठाला, जातो वैकुंठाला, तुका जातो वैकुंठाला। तो उनका एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टंट एंड लास्ट इंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं, आम्ही जातो आमच्या गावात, मैं हमारे गांव वापस जा रहा हूँ, मैं मेरे गांव वापस जा रहा हूँ। तो लोग कहेंगे अरे आपका ये कौन सा गांव है? आपका गांव तो ये देहू आपका गांव है। देहू आपका गांव, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले आम्ही जातो आमच्या गावा, वैकुंठ में वापस जा रहा हूँ, आमचा राम राम घ्यावा। थैंक यू वेलफेयर सेरेमनी, थैंक यू राम राम, राम राम घ्यावा, तुमची आमुची हेची भेटी, यही अभी हम सभी का ये मुलाकात है, मीटिंग है। बस इसके बाद एथुनिया जन्म टूटी, एक बार ये जन्म छूटने के बाद हमारा पुनः मिलन नहीं होगा। आता असो द्यावी आज्ञा, सभी भक्त मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए, गिव मी परमिशन टू गो होम बैक टू गॉड हेड। भक्तों को ही प्रार्थना कर, आता असो द्यावी आज्ञा,
गिव मी परमिशन, नॉट इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। कभी कभी हम सिर्फ इंफॉर्म करते हैं हमारे अथॉरिटीज को, वी आर नॉट आस्किंग परमिशन, वी आर जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन। मगर यहाँ पर तुकाराम महाराज परमिशन मांग रहे। असो द्यावी आज्ञा लागत से तुमचे पाया, आप मेरे ऊपर दया कीजिए, आपके चरणों में मैं पढ़कर आपसे भीख मांग रहा हूँ, दया मांग रहा हूँ कि आप मुझे अनुमति दीजिए। एता निज धामी कोणी विठल विठल बोला वाणी। अगर आप भी मेरे साथ आना चाहते हैं भगवान के धाम में तो क्या कीजिए, विठल विठल बोला वाणी, अपने मुख से विठल विठल बोलिए। राम कृष्ण हरि बोला तुका जातो वैकुंठाला। राम कृष्ण हरि नाम का उच्चारण कीजिए और आपका सभी का तुकाराम अभी वैकुंठ जा रहा है। और सदेह सभी के सामने तुकाराम महाराज ने देखा कि वैकुंठ से विमान आ रहा है, गरुड़, और नंद सुनंद जैसे ध्रुव महाराज को लेकर जाने के लिए आए, यहाँ पर तुकाराम महाराज जी को लेकर जाने के लिए वो आए। और तुकाराम महाराज उस वैकुंठ के विमान में बैठकर सभी के आंखों के सामने फ्लाइट टेक ऑफ हुई। द फर्स्ट फ्लाइट आज से 375 वर्ष पूर्व, 375 ईयर्स, पुणे के पास देहू से। और पुणे का जो एयरपोर्ट है वो लोहगांव है, जो तुकाराम महाराज का ससुराल कहा जाता है। तुकाराम महाराज की दूसरी पत्नी जो थी वो लोहगांव से थी, इसलिए पुणे का एयरपोर्ट लोहगांव में है। पुणे लोहगांव एयरपोर्ट। तो हमको लग रहा है कि हमने ये विमान ढूंढना नहीं, ये तो विमान लाखों वर्षों से गरुड़ एयरलाइंस चली रही है और जो भगवान के भक्तों को ले जाने के लिए सक्षम है। जैसे हमारी भक्ति 100% पूरी हो जाएगी और भक्तों के सानिध्य में, भक्तों की कृपा से हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक महत्वपूर्ण सूचना या आनंद की एक न्यूज है हम सभी के लिए। जैसे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी की जो 76th व्यास पूजा जो है, 75th पहले पंढरपुर में थी, फिर वृंदावन हुई, फिर पंढरपुर आई, फिर फाइनली वृंदावन में हुई। मगर दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग इन पंढरपुर धाम। तो जैसे हमारे धनंजय कृष्ण प्रभु कह रहे थे, प्रभु जी पंढरपुर इस पंढरपुर बस। और पंढरपुर का जो माहौल है, पंढरपुर के जो भक्तों का सानिध्य है, लाखों की संख्या में जो भक्त वहां पर आते हैं, वो दिन रात कीर्तन है, नाद ब्रह्म। वी कैनॉट सी दैट और कैनॉट फील दैट एल्सवेयर। तो ये जो माहौल या भाव जो है, सो 6 months एडवांस आई एम टेलिंग यू, 6 महीने पहले, ऑलमोस्ट 7 months, 6th of July, marks your calendar, 6th of July, Sunday is आषाढ़ी एकादशी, जिस दिन साक्षात तुकाराम महाराज भी हर वर्ष पंढरपुर धाम विठल का दर्शन करने आते थे। 6 जुलाई को तुकाराम महाराज प्रार्थना करते हैं, पंढरीचा वास चंद्रभागा स्नान आणिक दर्शन विठ्ठलाचे। भगवान 3 चीजें दीजिए, देना है तो क्या दीजिए, पंढरीचा वास, पंढरपुर में मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए, चंद्रभागा का स्नान करने के लिए अनुमति दीजिए, और आपका दर्शन। बस ये 3 हो जाए। और कहा जाता है कि जिस दिन आषाढ़ी एकादशी के दिन लाखों भक्तगण आते हैं पंढरपुर धाम, तो सभी भगवान का चरण दर्शन कर नहीं पाते गर्भगृह में जाकर। तो भगवान कहाँ पर आते हैं, कलश के ऊपर खड़े होते आकर। और जो व्यक्ति आषाढ़ी एकादशी के दिन कलश का भी दर्शन करता है, साक्षात विठल दर्शन के समान है, मंदिर के कलश का दर्शन। तो 6 जुलाई 2025 संडे, तो छुट्टी भी है, हॉलीडे, पवित्र है। होली मतलब जो पवित्र होता है, पवित्र ही है। तो आप सभी आमंत्रित है पंढरपुर धाम, वो वैकुंठ नगरी में। और यहाँ पर हम आके तुकाराम महाराज की जो भक्ति का अनुभव कर सकते हैं। हमने तो अभी सुना, या कुछ अनुभव किया होगा, या कुछ इमेजिन किया होगा कैसे वो आनंदोत्सव रहा होगा। मगर जिस दिन हम देखेंगे कि लाखों भक्त, 20 लाख भक्त चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए, नदी में पानी कम, बाल ज्यादा दिखते हैं, सरिसर हेड्स, लोग ही लोग हैं,
और ऐसे कीर्तन में तुकाराम महाराज का वैकुंठ गमन हुआ होगा। तुकाराम महाराज का जो दिव्य वाणी और नाम नाद ब्रह्म। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तुकाराम महाराज की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Okay, thank you, Prabhuji. So, wonderful class. I'll just take 30 seconds to give the little overview of the programs we conduct at the ISKCON of Bergen. And then in the meantime, devotees, I request you to please collect your questions. You can ask directly or post it to the chat room, and we'll take those questions in orderly manner. Prabhuji, you have some time, right, for the questions? Okay. Yes, So Prabhu. I'll just give some short introduction. I'm not okay, sharing the screen. Okay. That's our beautiful website, iskonofbergen.org. That's where all the information is there, whatever you might need. And so we conduct these Wednesday Sangha programs for many years now, and we'll continue with this session. Today is the third session on this Vaishnava Saints introduction from Maharashtra, and next week will be another exciting session. Follow on the website, and on this Sunday we'll be doing the Sunday Love Feast celebration 4:30 in the Paramus area. Those who are local to New Jersey, you're all welcome. And we conduct the Bhakti Bridge programs with all fun, kirtan, philosophy discussion, prasadam, interesting things. In the midday, on the working days, we conduct Bhagavad Gita reading, 12 to 12:15, and on daily morning, we have the Japa Sangha at the same Zoom, 6 to 8 EST, and we have a wonderful calendar which has all the events relevant to the local region, and all our events, whatever conducted, they all are there on the YouTube channel and also can be found on this website. All right, so feel free to visit the website. There's a lot of exciting things keep coming up. With that, I'll go back to the stop the share. Okay, so let's go back to the questions. Devotees who have questions, please raise your hand and you can take those questions, or you can post it in the chat room too. Yes, Ramchandra Prabhu. Hare Krishna. Prabhuji, can you explain this 28 yuge ubhe? What does that mean? 28 yuga means? I will get back to you, Prabhu जी, क्योंकि इसके दो है। कई लोग कहते हैं कि 28 युगों से भगवान खड़े हैं, मगर जितना मुझे लग रहा है कि 28वें युग में भगवान खड़े हैं। जैसे ब्रह्मा जी के दिन में भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, तो ब्रह्मा जी का जो 28वां युग है, 28वां जो युग है, उस युग में भगवान द्वापर युग में, जो द्वापर की लीला समाप्त करके 28वें चतुर्युग, जिसमें सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आता है, इस कलयुग में 28वें कलयुग में भगवान खड़े हैं। मगर कई सारे कहते हैं कि 28 युगों से खड़े हैं, योगे 28 विटेवर योगा। मगर जितना ऑथेंटिसिटी ये है कि 28वें युग में भगवान खड़े, ब्रह्मा जी के 28वें युग में द्वारकाधीश कृष्ण के अवतार में इस लीला को भगवान ने स्वीकार किया है। Okay. Thank you. Yes. Any other questions? Prabhuji, I have a very basic question.
Yes, bro. So I'm just intrigued with the wonderful pastimes of Tukaram Maharaj. So, who he was in the past life, and what was his childhood, and how he turned out to be such a beautiful devotee. There is no information about his past life. तो पास्ट लाइफ की तो अभी तक कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर उनका चाइल्डहुड जैसे हमने कहा कि चाइल्डहुड वाज लाइक बेसिक, जैसे नॉर्मल चाइल्डहुड था। घर में बहुत सारे पैसे वाले थे और पिताजी जमींदार थे, लोगों को लोन देते थे, लक्ष्मी Hmm. देते थे सभी को, जो जो गरीब थे उनको सभी कार्य के लिए। और तब तक तो ठीक था, मगर जब गांव में अकाल आ गया, ड्राउट, और उस समय फिर सारा कठिन परिस्थिति हो गई और कठिनाई हो गई कि इतना परिस्थिति परिश्रम हो चालू हो गया, कठिनता आ गई कि गांव में भूखमारी से सब लोग मरने लगे। और फिर भूखमारी से सभी मरने के कारण इतना परिश्रम, इतना कठिन परिस्थिति थी कि लोग वेट कर रहे थे कि किसी के घर में कोई मरे, मरे तो हमें उनके घर में 10वें दिन या 11वें दिन भोजन करने के लिए, श्राद्ध का भोजन खाने के लिए मिले। तो इसके बाद धीरे 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 ही बिकेम वेरी टर्न आउट। उनके ऑलरेडी एक जो भाई थे वो भी भक्त थे, और उन्होंने भी, हालांकि वे गृहस्थ थे, फिर भी वो वैरागी बनकर घर छोड़कर चले गए थे। मगर बाल्यावस्था तो नॉर्मल डिवोटी की थी नहीं, एकदम नॉर्मल लाइफ ही चल रही थी, एज अ नॉर्मल गृहस्थ लाइफ। मगर धीरे धीरे धीरे, जैसे हमने लास्ट टाइम सुना था कि उन्होंने संतों का चरित्र पढ़ना प्रारंभ किया। जब संतों का चरित्र का पढ़ना प्रारंभ किया तो भगवान के भक्तों के जीवनी में उनकी रुचि उत्पन्न हुई, फिर कीर्तन में रुचि उत्पन्न हुई। देन ही अटैच टू द होली नेम। Hmm. आपने एक बात मेंशन की थी कि इसी जन्म में है भगवान को प्राप्त करना है। यस। तो उसके लिए जो तुकाराम महाराज ने वो जो रूल्स बताए, जो चीजें बताई कि संगम, वैष्णवों का संगम, आपने 3 चीज बताई थी। हरि से, हरि का नाम, और हरि के नाम से भगवान के भक्त, और भगवान के भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तो आ, वो बात बहुत अच्छी लगी। और इसके लिए ऐसा मतलब ऐसा क्या जीवन में उनके में बदलाव आया था जिसके कारण से कि उन्हें इतने उत्तम भक्ति का प्रभाव प्राप्ति हुई उन्हें। जब उन्होंने देखा कि सारा संसार इतने कष्टों से गुजर रहा है, बुडती हे जन पाहे न डोळा म्हणून कळवळा येत असे। ये संसार कष्टों के कारण इतना डूब रहा है। संसार दुःख मूळ चोहीकडे इंगळ, थारा नाही कोठे रात्रंदिवस तळमळ। ये संसार इतना डूबते जा रहा है इस भौतिक संसारिक चीजों के प्रति, या भौतिक संसार में ये सारा संसार के लोग डूबते जा रहे, और ये देखकर मुझे बहुत दुख लग रहा है। बुढ़ती है जन पाहे न डोळा, मैं मेरे आंखों से देख नहीं सकता, और इसीलिए वो संसारिक लोगों के लिए अपना अधिक समय देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सब कुछ, घर बार सबसे समय निकाल के सारे लोगों को, जैसे हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, हमारी सिर्फ एक फैमिली जो है वो तो लिमिटेड है, मगर सारे संसार के लिए उन्होंने अपना पूरा समय देना प्रारंभ कर दिया। बुढ़ती है जन पाहे न डोळा। जब ये सारा संसार डूब रहा है भौतिक संसारिक आसक्ति के कारण, भौतिक संसार में डूब रहा है, इसके लिए वो फिर अपना समय उन्होंने प्रारंभ कर दिया देने के लिए, और सारे संसार के लोगों के लिए समय देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। थैंक यू प्रभु जी। So, someone is there or you dropped off? आई थिंक Dis- आई मिस्ड हिम। Disconnect हो गए शायद। डिस्कनेक्ट हो गया। इसमें से ऑनलाइन में जितने लोग हैं उसमें से कितने लोग पंढरपुर जा चुके हैं? मे बी हैंड्स रेस करें या म्यूट करके बताएं। हरि बोल। भाव साहब या माधवी सीता निमाय कृपा।
धनंजय कृष्ण, जय द्रौपदी माता जी, सुरमय वृंदावन प्रभु, यशोदा गोपी। ये अभी अगर आप देखेंगे पंढरपुर जाएंगे तो मुंबई में भी आप 3 टेम्पल्स कवर कर सकते हो, मीरा रोड, चौपाटी, जुहू, जो प्रभुपाद कहते थे कि ये मेरा ऑफिस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्पल राधा रास बिहारी। फिर पंढरपुर जाते वक्त रास्ते में आपको इस्कॉन पुणे, जो बहुत ही महान ग्रेट वंडरफुल टेम्पल है। और अभी गोवर्धन इको विलेज भी है पास में, मुंबई के पास, बहुत फेमस। और अब खारगर का एक टेम्पल का ओपनिंग आ रहा है, आप यूट्यूब जरा कीजिएगा, नेक्स्ट वीक में उसका ओपनिंग है। मोदी जी आ रहे हैं खारगर इस्कॉन का ओपनिंग करने, इतना महत्व है ये टेम्पल के। हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के ओपनिंग सेरेमनी के लिए आ रहे हैं, उसका यूट्यूब में आप देखेंगे तो थोड़े से वीडियोस अभी भी है। तो पंढरपुर यात्रा किसी को करनी हो तो, इंटरेस्ट हो तो मुझे बताएं, मैं जरूर ऑर्गेनाइज करूंगा। वृंदावन जा सकते हैं, मुंबई और पंढरपुर भी कर सकते हैं। पंढरपुर के आसपास भी बहुत सारी और भी अन्य जगह है, और बहुत सारे संत जनाब आए, ज्ञानेश्वर, ये सब की आनंदी है, ये सब जगह पे हम यात्रा कर सकते हैं, कृष्ण भक्त प्रभु को साथ में ले सकते हैं, और ऐसी यात्रा करके चंद्रभागा में डुबकी लगाए, और सब बहुत सा हो सकता। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो मुझे टेक्स्ट करना, तो अगर इंटरेस्ट 5-6 फैमिलीज को भी इंटरेस्ट होगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कुछ ऑर्गेनाइज करने की। So do let me know. Let's see if we can come back on the call. We'll give another minute. Prabhuji, he sent message on the group. There's internet issue. Okay, ठीक है, then we can I guess end the call. But yeah, जो पंढरपुर जाना एक बात है, लेकिन पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी में जाना एक दूसरी बात है। जैसे प्रभु बता रहे थे कि हफ्तों तक, दिनों तक, महीनों तक वारकरी लोग जो संप्रदाय है, वो लोग चलते 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 आषाढ़ी एकादशी पे विठल के दर्शन के लिए चलते हैं, और उसका जो एटमॉस्फेयर वाइब्स होता है वहां पे कुछ अलग ही अनएक्सप्लेनेबल है। इतना पावरफुल है, पूरी रात भर चंद्रभागा की नदी के तट पे भजन की आवाज, विठल की आवाज, पांडुरंगा की भजन चलती रहती है, और इतना सुंदर माहौल होता है कि पूछो मत। We had the fortune to be there for a couple of times during आषाढ़ी एकादशी, और ऑल्दो बोलते इतने सारे लोग होते, बट इट्स नॉट, देयर इज नो कमोशन, ऐसा नहीं कि आपको धक्का मुक्की वगैरह। और वहाँ पे ब्यूटीफुल इस्कॉन का टेम्पल भी है। तो जुलाई में या कभी भी जाना हो तो बताइएगा, वी कैन प्लान समथिंग वेरी नाइस। ऑल दीज आर ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन एंड अराउंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो आई गेस गोपाल गोविंद प्रभु का इशू हो रहा है इंटरनेट का, सो we can once again just thank everyone to join for the last 3 sessions. We will have more such seminars coming up, so stay tuned. Gopal Govind Prabhu, over to you. Yes, Prabhu. Thank you so much. Thank you everyone for participating in today's Sangha. We will meet next week on next Wednesday in the same Zoom, same time. Have a wonderful Krishna conscious time ahead. Vanchakatarvasya kripa sindhu abcha patitanam pavnebhyo vaishnavebhyo namo namo. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol.